Hello everyone, in the series of organic chemistry, today we are going to start about the IUPAC names of unsaturated hydrocarbons. In organic chemistry, we already discussed about the basic rules to write the names. We discussed about various functional groups with their examples, and our today's lecture is on the IUPAC names of unsaturated hydrocarbons. The first thing is, what is unsaturated hydrocarbon? Those which consist double or triple bond are known as unsaturated hydrocarbon. So the first rule to write the IUPAC name of unsaturated hydrocarbon is, the parent chain must consist or must include the multiple bond. जो भी हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर हमारा मल्टीपल बॉन्ड आना नेसेसरी है. फिर मल्टीपल बॉन्ड के साथ चाहे वो चेन आपकी लॉन्गेस्ट हो या ना हो, ट्राई टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन विच इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड. पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड द मल्टीपल बॉन्ड. Simply, the multiple bond is double bond or triple bond. जो भी चेन आप लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए आपका. सेकेंड वन इज मल्टीपल बॉन्ड गेट द लोवेस्ट नंबर. जो मल्टीपल बॉन्ड आपने चूज किया है तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि हमारे मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले. थर्ड वन, इफ इन अ कंपाउंड बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स केम, देन डबल बॉन्ड ऑलवेज प्रिफर ओवर ट्रिपल बॉन्ड. जो डबल बॉन्ड है उसको हम हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर प्रेफरेंस देंगे. सिंपली मीन टू से, अगर एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा हमारा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड ट्रिपल बॉन्ड बिकेम्स आवर सब्स्टिट्यूएंट. ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. द नेक्स्ट रूल, ये सारे पॉइंट्स हम एक एग्जाम्पल से जस्टिफाई करेंगे. द नेक्स्ट रूल इज position number of double bond is always written before its suffix. जो पोजीशन नंबर है डबल बॉन्ड का या फिर ट्रिपल बॉन्ड का, वो हमेशा सफिक्स से पहले लिखा जाता है. दैट इज, फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3. The first thing what we are going to do, we are going to find the longest chain which must include double or triple bond. Now start the numbering from the side where the double bond gets the lowest number, like 1, 2, 3, 4 and 5. If we start the numbering from this end, 1, 2, 3, 4 and 5. There are two possibilities to number this chain. If we start from this end, then double bond gets the number position second. If we start from this end, then double bond gets the position third. So the name of this compound is going to be pent. The suffix for such hydrocarbons is ENE. ene. डबल बॉन्ड जहाँ आ जाता है तो हम ene वर्ड को यूज करते हैं. The name is going to be pent2ene. Clear? Next one is, the fifth rule here is, if CH2 double bond is present,
If this one becomes a substituent in our chain, then we call this group as methylidene. Then we called this group as methylidene. If we write CH3CH double bond, then we call this ethylidene. Then we call this group as ethylidene. If we write CH2 double bond CH single bond, then this group is known as vinyl, or we can also call this group as ethanyl. This group is known as vinyl group or also known as ethanyl group. CH2 double bond CH and CH2. If this group is present, this group is known as allyl group. This group is known as allyl group. Double bonded CH2 if act as a substituent, तो हम नाम लिखेंगे मिथाइलिडीन. If CH3 CH double bond act as a substituent, तो हम नाम लिखेंगे इथाइलिडीन. If CH2 double bond CH act as a substituent, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे विनाइल. एंड दिस ग्रुप एक्ट एज अ सब्सटीट्यूएंट, तो हम उसको बोलेंगे अलाइल ग्रुप. क्लियर? नाउ try to name this compound. The first rule is parent chain must include the multiple bond. So let's try to find out the longest chain which includes maximum number of double bonds. फर्स्ट थिंग हम एक ऐसी चेन को फाइंड आउट करेंगे जो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को कंसिस्ट कर रही है. लेट्स बिगिन आवर चेन फ्रॉम दिस साइड. 1 2 3. If we end over this carbon, then this one is a 4 carbon chain. If we continue in this manner, then we have 5 carbon longest chain which consist 2 multiple bonds. Clear? Now this group act as substituent here. ये जो ग्रुप है ये यहाँ किसका काम करेगा? सब्सटीट्यूएंट का काम करेगा. तो हम इसके लिए वर्ड क्या यूज कर देंगे? 3-methylidene. We use the word methylidene here. 3-methylidene penta 1,4-diene. The name of this compound is going to be 3-methylidene. CH2 डबल बॉन्ड एक्ट एज सब्सटीट्यूएंट, सो हम वर्ड यूज करेंगे मिथाइलिडीन. 5 कार्बन की चेन है तो हमने यूज किया पेंटा. फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो वी राइट 1,4. 2 डबल बॉन्ड है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने वर्ड यूज किया डाईइन. अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो हम डाईइन वर्ड यूज करते हैं. 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो हम ट्राईइन वर्ड यूज करेंगे. Clear? Next, the name of the compound is CH2CH. Try करते हैं इसका नाम लिखने का. There are 2 ways to number this chain. Either start from this end or starts from this end. या तो यहाँ से शुरू कर लीजिए नंबरिंग को, या यहाँ से शुरू कर लीजिए. अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, so we get 1 2 3 4 and 5. 5 is the longest chain. In this set of numbering, double bond occupies first and third position. अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं तो हमारे डबल बॉन्ड को फर्स्ट और थर्ड पोजीशन मिल रही है. अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 and 5, then the double bond occupies second and fourth position. So this manner of numbering is wrong and we start the numbering from this end. And the name is going to be 4 पे हमारे पास CH3 ग्रुप है, act as substituent. The name is going to be 4-methyl पेंटा. फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड है, सो डाईइन. 4-methyl penta 1,3-diene. Now this compound is for practice. Try to name this compound. Try to name this compound in your homework और कमेंट सेक्शन में आप इसका नाम मेंशन कीजिए.
So let us make a quick recap of the IUPAC names of unsaturated hydrocarbons. सबसे पहले हमें पेरेंट चेन ढूंढनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड को अपने साथ इंक्लूड किया हो. सेकेंड थिंग, मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना है. थर्ड थिंग, डबल बॉन्ड को हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्रेफरेंस करनी है. तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो कंपाउंड होमवर्क में दिया है वहाँ डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड है. सो ट्रिपल बॉन्ड इज गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूएंट और डबल हमारा पेरेंट रहेगा. पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज ऑलवेज रिटन बिफोर इट सफिक्स. जैसे यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था तो हमने लिखा टू इन. यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशंस पे है. क्लियर? सो दीज आर द रूल्स टू राइट द IUPAC नेम्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर डिस्कसिंग द IUPAC नेम्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स we are going to discuss the IUPAC names of compounds containing one functional group. और हम बोल सकते हैं जिनके पास सेकेंडरी सफिक्स हो उस टाइप के कंपाउंड्स का नाम हम कैसे लिखेंगे. So there are some rules to write the names. The first one is longest chain. We have to find the longest chain contain that carbon find the longest chain contain that carbon to which functional group is attached. To which functional group is attached. वो चेन हमें ढूंढनी है जिसने उस कार्बन को कंटेन किया हो जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है. सेकेंड वन, if organic compound, second one is if organic compound contains terminal functional group. अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हैं, लाइक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास आ जाएगा CHO, COH, CONH2, CN, COCl, एसिड क्लोराइड एक्सेट्रा. अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आता है तो जो हमारी कार्बन चेन लॉन्गेस्ट हमें स्टार्ट करनी है वो हम CH2 से स्टार्ट करेंगे. लाइक हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से उस चेन का नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. द नंबर स्टार्ट फ्रॉम देयर कार्बन. इफ अवर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो जो हम नंबरिंग कर रहे हैं चेन की वो हम इन्हीं के कार्बन से स्टार्ट करेंगे. थर्ड पॉइंट और थर्ड रूल हम बोल सकते हैं, अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं एक जैसे तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड्स को यूज़ करते हैं. इफ टू सेम सब्स्टिट्यूएंट, if two same substituents or functional group attach, if two same substituents or functional group attach, then we use di, tri, tetra, etc. अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप में तो हम उनके साथ उनके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल CH2OH, CH2, CH2OH. There are 3 carbons and 2 OH groups are attached with this compound. So the name is going to be, for 3 carbon propane, all the bonds are single, so this one is propane. Now first and third position, it's like 1, 2 and 3. First and third position consist 2 OH group, so this one is going to be propane 1,3-diol. नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? propane 1,3-diol. क्लियर? इफ मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए अगर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो हमारा काम चल जाएगा कि हम डाई वर्ड यूज़ करें, टेट्रा वर्ड यूज़ कर लें. सिंपली कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का नाम चेंज हो जाता है अगर वो ज़्यादा नंबर में आ जाते हैं तो. लाइक इफ मोर देन
functional groups, if more than two functional groups directly attach with the parent chain, directly attach with the parent chain, अगर दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ अटैच हो जाते हैं तो उनका जो नाम है ना वो चेंज हो जाता है और उनमें से कोई भी हम पेरेंट चेन के साथ कंसीडर नहीं करते. इफ मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच विद द पेरेंट चेन, देन none of them form a part of parent chain. तो उनमें से कोई भी पेरेंट चेन का पार्ट नहीं रहेगा. पे चेन सिंपली मीन्स पेरेंट चेन. फॉर एग्जाम्पल फिर उनके लिए हम अलग से वर्ड यूज़ करने लग जाते हैं. जैसे अगर दो से ज़्यादा COH ग्रुप अटैच हो जाएं तो हम उसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. नंबरिंग के साथ इन ग्रुप्स को रिंग में काउंट नहीं करेंगे, COH को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे 1, 4, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड विदाउट काउंट देम इन द पेरेंट चेन. इफ मोर देन 2 CHO ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड. क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए हम? कार्बल्डिहाइड. CN, अगर CN सिस्टम आता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल. अगर CN वर्ड आता है तो उसके लिए हम कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज कर सकते हैं. और CONH2 अगर मिलेगा ना दो से ज़्यादा तो आपको नाम में लिखा मिलेगा कार्बोक्स अमाइड. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, देखो जैसे CN, CH2, CH, CN, CH2, CN. देखिए आप जैसे यहाँ पे 3 CN फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, 1, 2 एंड 3. देयर आर 3 CN ग्रुप्स. इसी तरीके से आपके पास 3 COH ग्रुप आ सकते हैं, 3 CHO ग्रुप आ सकते हैं, या और भी कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो 2 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो जाएगा. सो हम नंबरिंग कैसे देंगे इनको? देखिए इनके अलावा कार्बन काउंट करो, 1, 2, 3. जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमें कंसीडर नहीं करना है. सो नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? प्रोपेन. फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड पे है और थर्ड पे है. जिन जिन पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है उनको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और नाम क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बोनाइट्राइल. देखिए अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हम सिंपली डाई वर्ड को यूज करके उनका नाम लिख सकते हैं. अगर 2 से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप एक पेरेंट चेन के साथ अटैच होते हैं तो उनमें से कोई भी पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा. देन नन ऑफ देम फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन. उनमें से कोई भी पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा. एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है. देखिए इस एग्जाम्पल में 3 CN ग्रुप हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल. क्लियर है? सो इन्हीं रूल्स से रिलेटेड आपके लिए एक होमवर्क है. यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ DDT. आपको DDT का स्ट्रक्चर बनाना है. आई एम गोइंग टू राइट द फुल फॉर्म हेयर. डाइक्लोरो, देयर आर डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, 2 क्लोरीन है और 2 फिनाइल ग्रुप अटैच हैं, एंड ट्राइक्लोरोइथेन. द फुल फॉर्म ऑफ DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ DDT. सो हमने अभी तक 2 टाइप के कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स लिखना सीखा. जैसे हमने सीखा कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे लिख सकते हैं, और दूसरा हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया उन रूल्स के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं उनका नाम लिखने में जिनके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो. क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेम्स उन कंपाउंड्स का जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस IUPAC names of compounds contain more than one functional group. Now we are going to discuss how we can write the names of the compounds which contains more than one functional
ग्रुप. सो द फर्स्ट रूल टू राइट द नेम ऑफ सच कंपाउंड इज कि जो भी दो फंक्शनल ग्रुप है ना, उनमें से एक को तो हम कंसीडर कर लेंगे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, और जो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप बचेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट. आउट ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप, one is considered as parent functional group and another one act as substituent. उनमें से एक तो कंसीडर हो जाएगा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह और दूसरे को हम कंसीडर कर लेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह. सो द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ दीज एसिड्स इज, सबसे पहले हमारे अमीन सोल्ट्स आते हैं, उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड. अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो ये हमारा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप बनेगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा. नेक्स्ट वन इज एसिड एनहाइड्राइड. This one is anhydride functional group. After anhydride, ester is there. Carboxylic acid, sulfonic acid, acid anhydride, ester. एस्टर के बाद आ जाएगा हमारे पास प्रायोरिटी किसकी आ जाएगी, एसिड क्लोराइड की. एसिड क्लोराइड के बाद अमाइड की प्रायोरिटी रहेगी. आफ्टर अमाइड नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद थायोल, SH इज थायोल, थायोल के बाद NH2, अमीन्स, अमीन्स के बाद प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड को और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड को. नाउ दिस वन इज द प्रायोरिटी ऑर्डर. एक बार आप फंक्शनल ग्रुप्स वाले वीडियो को ज़रूर देखें जहाँ पे इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स का नेम हमने डिस्कस किया है. कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड या नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, अमीन्स, डबल बॉन्ड सिस्टम एंड ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम. सो ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है कि कोई भी दो अगर फंक्शनल ग्रुप्स हमें मिल जाते हैं तो हम इसकी हेल्प से ईजिली बता सकते हैं कि विच फंक्शनल ग्रुप्स एक्ट एज पेरेंट and which functional groups act as substituent. Now, if our functional group act as suffix, what we write the name, and if our functional group act as prefix, तो उसके लिए हम कौन सा word use करेंगे. First one, if the functional group is COH, इनसे पहले अमीन सोल्ट्स आते हैं. सो अगर अमीन सोल्ट हमारे पास कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तो COH हमारा प्रीफिक्स बन जाता है. अगर ये सफिक्स में है, पेरेंट है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होगा ओइक एसिड, और अगर ये प्रीफिक्स में यूज़ हो रहा है तो इसके लिए वर्ड यूज़ होगा कार्बोक्सी. COH अगर सफिक्स में यूज़ हो रहा है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे ओइक एसिड, और अगर प्रीफिक्स में यूज़ हो रहा है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे कार्बोक्सी. सेकेंड वन इज SO3H. if this functional group act as a suffix तो हम simply उसका नाम लिखते हैं सल्फोनिक एसिड, और अगर SO3H प्रीफिक्स का काम करता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सल्फो. थर्ड वन इज COCO, एसिड एनहाइड्राइड. ये सिर्फ सफिक्स में ही यूज़ होता है, ये कंपैरेटिव बहुत रेयरली यूज़ होता है, तो इसके लिए सफिक्स हमारे पास क्या यूज़ होगा, ओइक एनहाइड्राइड. प्रीफिक्स के लिए यूज़ नहीं होता. The next one is COR, एस्टर. अगर सफिक्स में हम लिख रहे हैं तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं O8. सफिक्स के लिए हम एस्टर के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, O8 वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर वो प्रीफिक्स में यूज़ होता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एल्कॉक्सी कार्बोनाइल. क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम उसके लिए, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एस्टर के लिए अगर एस्टर प्रीफिक्स है तो. नेक्स्ट वन इज असाइल हेलाइड, COX. ये जो हमने COCl लिखा है, Cl की बजाय यहाँ X लिख लीजिए. असाइल हेलाइड, इनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे OL हेलाइड. अगर ये सफिक्स हैं तो इनके लिए वर्ड क्या हो जाएगा, OL हेलाइड.
और अगर ये प्रीफिक्स है तो इनके लिए वर्ड हो जाएगा हेलोफॉर्माइल। अगर हमारे COX जो असाइल हेलाइड हैं वो सफिक्स का काम करेंगे तो हम वर्ड यूज़ करेंगे OL हेलाइड, और अगर वो प्रीफिक्स का काम करेंगे तो हम वर्ड यूज़ करेंगे हेलोफॉर्माइल। अमाइड CONH2, इफ़ दे एक्ट एज अमाइड तो हम सिंपली उसका नाम अमाइड ही लिखेंगे, और अगर वो प्रीफिक्स का काम करेंगे तो हम लिखेंगे कार्बोमाइल, कार्बोमोइल, ठीक है, कार्बमोइल। नेक्स्ट वन CN, इफ एक्ट एज सफिक्स तो वर्ड यूज होगा नाइट्राइल, या फिर आप बोलोगे साइनाइड वर्ड, या तो हम नाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे या हम साइनाइड वर्ड यूज करेंगे। अगर ये प्रीफिक्स यूज होगा तो हम साइनो वर्ड लिखेंगे, अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो हम साइनो वर्ड लिखेंगे, सफिक्स की तरह यूज होगा तो हम नाइट्राइल वर्ड लिखेंगे। NC सिंपली रिप्रेजेंट आइसोनाइट्राइल, NC किसको रिप्रेजेंट करता है, आइसोनाइट्राइल। अगर सफिक्स है तो, प्रीफिक्स है तो वर्ड हो जाएगा आइसोसाइनो, अगर प्रीफिक्स है तो वर्ड हो जाएगा आइसोसाइनो। CHO सिंपली हम वर्ड के पीछे AL लगाते हैं, एल्डिहाइड, और अगर आगे नाम लिखना हो, प्रीफिक्स बनाना हो तो फॉर्माइल कहेंगे या हम कहेंगे एल्डो, या तो हम उसको बुलाएंगे फॉर्माइल या हम उसको बुलाएंगे एल्डो। 10th कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए वर्ड यूज करते हैं ONE, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, और प्रीफिक्स के लिए वर्ड यूज हो जाएगा कीटो या हम उसको बोलेंगे ऑक्सो। आइदर वी कॉल द वर्ड कीटो और वी कॉल द वर्ड ऑक्सो। अगर OH है हमारा तो OH यूज होता है OL, एल्कोहल। OH के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एल्कोहल वर्ड यूज करते हैं OH। अगर ये सफिक्स के लिए यूज होता है तो हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी, क्या यूज करेंगे सफिक्स में, सफिक्स में यूज करेंगे OL और प्रीफिक्स में यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। SH के लिए हम यूज करेंगे थायोल, SH के लिए वर्ड यूज होगा थायोल, और अगर ये प्रीफिक्स है तो इसके लिए मरकैप्टो, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, मरकैप्टो वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज NH2, अमीन। अगर सफिक्स है तो अमीन, और अगर प्रीफिक्स है तो अमीनो। यू हैव टू मेमोराइज दीज नेम्स। अगर सफिक्स के साथ यूज हो रहा है तो हम ये वर्ड यूज करेंगे, प्रीफिक्स के लिए यूज हो रहा है तो हम ये वर्ड्स यूज करेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस दीज थिंग्स विद सम एग्जाम्पल्स। इस टाइप के नाम लिखने का एक ही तरीका होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कीजिए और उसके बाद अपने सेम रूल, लॉन्गेस्ट चेन, लोवेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, यही कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हमें नाम लिखना है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस विद सम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3, CH2OH and CH2OH, CH2, CH2, C double bond OH. In this compound, the first thing is there are two functional groups are there. One is acid functional group and another one is alcohol functional group. तो इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप है? पहली चीज़, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। सो प्रायोरिटी किसकी? एसिड की। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हेयर, 1 2 3 4। नाउ देयर आर 3 वेज। आप ऊपर भी 5 लिख सकते हो, आगे भी 5 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 5 लिख सकते हो। सो आपको एक ऐसी चेन चूज करनी है जिसने मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स को कंटेन किया हो। सो लेट्स नेम दिस 5। So our longest chain is of 5 carbons. Clear? 5th position पे hydroxy है. The first thing we are going to write 5 hydroxy. 5th पे hydroxy है, prefix में हमने OH को hydroxy बोल दिया. अगर वो parent होता तो हम OL word use करते. 5 hydroxy, 4 के ऊपर मिथाइल हाइड्रोक्सी, या आप उसको लिख सकते हो हाइड्रोक्सी मिथाइल। 4 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट, नॉट फंक्शनल ग्रुप। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? हाइड्रोक्सी मिथाइल है। उसी के बाद 4 पे हमारे पास मिथाइल भी है, 4 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल भी है, 4 पे मिथाइल भी है, 5 पे हाइड्रोक्सी है,
एंड नाउ द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 5 कार्बन, सो हम नाम लिख सकते हैं पेंटेनोइक एसिड. So the name of this compound is going to be 5-hydroxy 4-hydroxymethyl 4-methyl पेंटेनोइक एसिड. सीक्वेंस में हम हर एक सब्स्टिट्यूएंट का, हर एक फंक्शनल का नाम लिखेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एग्जाम्पल. लेट अस कंसीडर Br. एक रैंडम एग्जाम्पल चूज करते हैं. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप्स. दिस वन CON, दिस इज अमाइड. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है. C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. ये एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है. और ब्रोमीन को अगर देखें तो ये हेलो फंक्शनल ग्रुप है. तो इस कंपाउंड में हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? देयर आर 4 फंक्शनल ग्रुप्स. प्रायोरिटी किसकी जाएगी? सबसे पहले अमाइड की. अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना चाहते हैं तो देखिए अमाइड, फिर कहीं जाके हमारे पास डबल बॉन्ड आता है, हैलोजन सबसे लास्ट में जाते हैं और अमाइड के बाद ही कीटो आता है. सो द फर्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी फॉर द अमाइड. इट्स 1 2 3 4 एंड 5. देयर आर 5 कार्बन्स. हमने नंबरिंग दे दिया क्योंकि हमें क्या करना है? मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स को कंसिस्ट करना है. तो इस चेन के अंदर अमाइड आ गया, कीटोन आ गया, एल्कीन भी आ गया. इस चेन ने 3 फंक्शनल ग्रुप्स को कंसिस्ट कर लिया. नाउ ऑन द सेकेंड पोजीशन एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया अब ये ग्रुप. अब इस सब्स्टिट्यूएंट में सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है. तो हम नाम कैसे लिखेंगे? सेकेंड पे एक ग्रुप है जो स्टार्ट होता है 2 ब्रोमो इथाइल से. अब जो इथाइल ग्रुप है उसके सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ था तो हमने लिखा 2 ब्रोमो इथाइल. उसके बाद जो अमाइड है उस पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है N इथाइल. 3 पे ऑक्सो, N पे इथाइल है, 3 पे ऑक्सो है और 4 के पास EN है. सारा लिख दिया हमने. N इथाइल, 3 ऑक्सो, 4 ईन और उसके बाद 5 कार्बन है. सो नाम क्या हो जाएगा? पेंटामाइड. सो नाम क्या हो जाएगा? सिंपल सा हमारे पास 4 इन पेंटामाइड. ये कुछ थोड़े से शायद कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए. लेट अस डिस्कस अ सिंपल एग्जाम्पल. वी हैव 2 फंक्शनल ग्रुप COH, CH डबल बॉन्ड CH एंड COH. अब यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक डबल बॉन्ड है. लेट्स स्टार्ट नंबर फ्रॉम दिस 1 2 3 एंड 4. COH क्या हो गया? एसिड फंक्शनल ग्रुप. ये हो गया डबल बॉन्ड. तो नाम कैसे लिख देंगे? ब्यूट. सेकेंड पे EN है, फर्स्ट और फोर्थ पे कार्बोक्सिलिक है तो डाइओइक एसिड. नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड. Now there are 2 examples for you to practice. Practice this question. CH3 CH NO2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसका नाम लिख के ट्राई कीजिए. एंड वन मोर एग्जाम्पल CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CO CH3. इन दोनों कंपाउंड्स का नाम ट्राई कीजिए, इन रूल्स को रिवाइज कीजिए एंड प्रैक्टिस द कंपाउंड्स एज मैनी एज यू कैन. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होंगे. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.